Okay, guys. So first of all, I would like to welcome you all to the first lecture for our introductory MME course, Introductory Mathematical Methods for Economics. Just would like to know if you guys are okay with me using Hindi and English, a mix of both. Muskan, Vidhi, guys, all okay with that? Yeah, all right, perfect. ठीक है. So आज के lecture का agenda, we won't be doing too much of concepts. What we will be doing is we'll understand what is the syllabus. हमारा पूरा का पूरा syllabus क्या है, ठीक है. आपके reference books क्या क्या होंगे, उसके कौन कौन से particular chapters आपको करने हैं. That is what we would be doing. आपका exam pattern क्या होगा और आप practice material कहाँ कहाँ से किस तरीके से practice कर सकते हो. And as a course, how difficult it is, yeah, what kind of approach you have to follow. So if you would like, you can consider it like a strategy and a syllabus based lecture. Okay. And guys, am I audible or is it lagging from my end? Yes, ma'am, you are audible. Okay, I'm audible. Thank you. Okay. All right. Gaurav, can you just mute yourself? I think. Okay, fine. All right. So let's just discuss what is your syllabus and the details and if there are any prerequisites on and all. और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे, किस किस तरीके से चीजें करने वाले हैं. That is what we are going to do. Okay. All right. So first of all, just to give you a little bit of brief, every single year what happens is different teachers come together and Delhi School of Economics, that is basically there your Department of Economics is there, and they every single time before the course starts they meet and they decide what kind of reference books, what is the syllabus going to be, and if there are any new additions or subtractions that need to be done. So this particular meeting was happened on 10th of August, and then they decided what to do. So यहाँ पे आपके रेफरेंस बुक्स क्या होंगे, उसमें कुछ चेंज करना है कि नहीं, all of that was there. ठीक है. So first of all, your reference book for this entire course is going to be Mathematics for Economic Analysis, second edition, Sitter and Hammond. ठीक है. So ये जो book है, Sitter and Hammond, Mathematics for Economic Analysis, this is basically the 2002 edition. ये इस एडिशन वाली बुक है, ये जो है आपकी रेफरेंस बुक रहेगी. एंड दिस पर्टिकुलर बुक इज ऑल्सो रेफर्ड इंटरमीडिएट एमएमई में, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स है, और जो अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ रहे हैं एडवांस एमएमई, उसमें भी यही रेफरेंस बुक यूज होती है. सो इन केस एनीबडी इज इंटरेस्टेड, यू कैन टेक द बुक एज वेल, बिकॉज आगे जाके किसी को मास्टर्स करनी है या इन जनरल भी दिस बुक इज समथिंग विच इज kind of a standard for economic students to refer all the time. ठीक है. So इसके almost सारे chapters, जैसे इस बार आप लोग chapter 1 to 9 refer करोगे, and then in your second semester you will be referring chapter 12, 13, 14, and then 15, 16, 17, and then later on rest of the chapters. So in case anybody is interested, you can take the book also. But typically unlike school, जैसे school में होता था कि you used to have all the books and all, now from now on what will happen, you will keep getting readings. ठीक है. Because अलग अलग chapters अलग अलग books से referred होंगे, तो there's no point buying so many books. You can use a college library for that, और जो photocopy shop है वहां से you can get the readings. ठीक है. So हर college में या तो उनके खुद की photocopy shop होती है, या फिर आप जो है there are few photocopy shops in North Campus also. So sometimes they do home delivery also, and you can go also visit North Campus and buy that also. So those are multiple options available to get the study material. ठीक है. तो ये आपकी reference book है, Mathematics for Economic Analysis, Sitter and Hammond. Multiple times use होती रहेगी. तो अगर कोई interested है book खरीदने में, तो definitely go for it. That will be my recommendation. उसके अलावा we will come to the marking. Before that, I would just like to go over the syllabus once. तो आपका जो syllabus है, it comprises of 3 units. Unit number 1, which is preliminaries.
मतलब जो भी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, राइट? मतलब जो काइंड ऑफ सबको पता होनी चाहिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, लॉजिक क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, प्रोपोजिशन, इफ एंड ओनली इफ, दिस इम्प्लाइज दैट। सो जो भी बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, मैथमेटिकल सिंबल्स जो थ्रू आउट आप बार बार यूज करोगे, राइट? योर एंटायर कोर्स विल बी बेस्ड ऑन फंक्शंस क्या है या बेसिक चीजें। सो एवरीथिंग बेसिक विल बी डन इन योर फर्स्ट यूनिट विच इज द प्रिलिमिनरीज। एंड इसके लिए जो आपकी रेफरेंस होगी, दैट विल बी चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द सेम बुक विच इज from now on I'll say Hammond 2002, so I'll keep referring the book as Hammond. So Hammond chapter number 1 will be your reference for this particular unit. And once you are done with that, then you will move on to the next edition, जहाँ पे आप लोग functions, अलग अलग तरीके के function, linear function, polynomial function, power function, logarithmic function, exponential function, then you will start talking about limits, series, sequences, continuity, differentiability, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग रूल्स, डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में क्या क्या एप्लीकेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है? सो एक चीज हमें थ्रू आउट दिस कोर्स ये ध्यान में रखनी है कि योर पर्पज ऑफ स्टडिंग मैथ इज नॉट टू स्टडी मैथ. Your purpose of studying math here is to learn all the tools which you will be applying to economics. ठीक है? By now I'm not sure how many of you had so many classes in college, और आपको I think थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपका कोर्स काफी मैथमेटिकल होने वाला है. तो आप चाहे इंट्रोडक्टरी माइक्रो पढ़ लो या फिर स्टार्ट्स पढ़ लो, स्टार्ट्स भी धीरे धीरे मैथमेटिकल होता रहेगा. जो अभी तक आपने पढ़ा है दैट हैज बीन वेरी बेसिक, और आपने बेसिकली सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी है. मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे बनेंगी, जनरल स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, ये सब चीजें आपने करी होंगी. बट और डेप्थ में मैथमेटिकली चीजें धीरे धीरे एडवांस होती जाएंगी, राइट? तो अभी जैसे इंट्रोडक्टरी माइक्रो करोगे, उसमें भी धीरे धीरे मैथ इंट्रोड्यूस होएगा, है ना? फिर मैथ्स में तो मैथ्स होता ही है, स्टार्ट्स भी थोड़ा सा मैथमेटिकल है. जो आपके सेमेस्टर 2 के कोर्सेज होंगे, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी यू विल हैव लॉट ऑफ ग्राफ्स एंड लॉट ऑफ इक्वेशंस इन्वॉल्व्ड. फिर intermediate MME, intermediate mathematical methods for economics you will have. Then intermediate statistics you will have, that will also contain math, even in your third semester. So the point of telling you all of this is just to make sure that you are well aware of this fact कि math is not going to leave you for your entire 3/4 year duration if you choose to do so. Like if you choose to do the 4 year, पूरे ड्यूरेशन के दौरान जो है मैथ्स आपके साथ ही रहेगा. सो ट्राई नॉट टू बी टू अफ्रेड ऑफ इट, ट्राई टू बिकम अ लिटिल फेमिलियर विद इट. हर चीज में थोड़े थोड़े लेवल पे टूल्स जो है मैथमेटिक्स के यूज होते रहेंगे, ठीक है? सो इफ समवन इज ऑफ दिस माइंडसेट कि बस एक ही पेपर है मैथ्स का और उसके बाद छुट्टी, तो ऐसा नहीं होने वाला है. एंड दैट इज probably the reason why you have to give a maths paper in CUET for taking economics honors. So this is just to make sure that everybody is ready with this mindset. ठीक है? So ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि अभी मैथ्स 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 आता रहेगा, ठीक है? तो try to not resist it, try to grasp it a little bit. Okay, you may be someone who doesn't like it too much, but working knowledge आपको होनी चाहिए, ठीक है? सो ये सब हमारा यूनिट 2 में होगा, जिसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के अलग अलग तरीके के जो फंक्शंस हो सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे. डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, स्लोप, कॉन्टिन्यूटी, सीरीज, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस, वो सब हम पढ़ेंगे. और इसकी रेफरेंस जो है आपकी बुक हैमंड के चैप्टर नंबर 2 to 8 होने वाले हैं, ठीक है? नो नथिंग यू हैव टू स्किप from anything, like entire chapter 2 to 8, chapter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और उसमें हर चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस हैं, एंड वी डू नॉट हैव टू स्किप एनीथिंग. हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? समटाइम्स अगर कुछ स्किप करना होता है तो इस सिलेबस में अलग से लिखा होता है कि डोंट डू 8.9 और डोंट डू 8.8, इस तरीके से मेंशन्ड होता है. सो यू डू नॉट हैव टू स्किप एनीथिंग, ठीक है?
सो एंटायरिटी में चैप्टर 2 to 8 आपको करने हैं. And then finally your third unit, which is single variable optimization, which is जब आपने सारे tools सीख लिए हैं, इकोनॉमिक्स का कोर प्रिंसिपल है गिवन सम कंस्ट्रेंट्स चीजों को मैक्सिमाइज करना या चीजों को मिनिमाइज करना. आप जो आपका कंज्यूमर है उसका एक बजट है, अंडर दैट बजट ही और शी हैज टू मैक्सिमाइज द हैप्पीनेस, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी, द गवर्नमेंट हैज टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ये सारी चीजें जो हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन जस्ट मीन्स यू हैव टू आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन. ठीक है, जैसे आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकाली होगी व्हेन यू वर इन योर क्लास 12. सो इट्स सिमिलर टू दैट. तो फंक्शन के अलग अलग ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कॉनकेव फंक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, क्या क्या थ्योरम्स हैं ये बताने के लिए कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, वो सब हम लोग करेंगे इन दिस पर्टिकुलर यूनिट. एंड द रेफरेंस बुक फॉर रेफरेंस चैप्टर फॉर दिस विल बी चैप्टर नंबर 9, जो हम लोग इसके लिए रेफर करेंगे, जिसमें कॉनकेविटी, कॉन्वेक्सिटी और ये सब के बारे में बातें होंगी. ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स. सो 3 units: basics, preliminaries, functions in one variable and single variable optimization. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो सिलेबस है वो ये है, चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 9 विदाउट यू स्किपिंग एनीथिंग फ्रॉम दैट. ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है, चैप्टर 1 to 9 फ्रॉम योर बुक हैमंड. अगर आप चैप्टर के नेम्स देखना चाहते हो तो वो क्या क्या रहेंगे, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट. देन फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कब कोई रिलेशन जो है उसको फंक्शन बोलेंगे, कब उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये सब करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसके अंदर क्या होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शंस, ये सब हम लोग करेंगे. फिर पावर फंक्शंस क्या होते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं. देन आफ्टर चैप्टर 4 में हम लोग सिंगल वेरिएबल डिफरेंशिएशन. तो पहली बात तो स्लोप क्या होती है, ठीक है, स्लोप ऑफ अ फंक्शन, उसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, उसी में हम लोग देखेंगे कि लिमिट क्या होती है. ठीक है, लिमिट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब पढ़ने वाले हैं. सीरीज क्या होती है, सीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, सीरीज कन्वर्ज कब करती है, सीरीज डाइवर्ज कब करती है. ठीक है, and then we will also do different rules related to continuity and differentiability in chapter number 7. उसके बाद हम लोग डिटेल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन e raised to the power x, a raised to the power x, that is basically your exponential function, उसको डिटेल में देखेंगे. लॉग फंक्शन, राइट, लॉग x, ln x, नेचुरल लॉग x, ये सब क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं. ठीक है, ग्राफिकली ये कैसे दिखते हैं, इनका इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन होता है. एंड देन फाइनली वी विल बी टॉकिंग अबाउट सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, कि अगर आपके पास एक फंक्शन इन वन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए जरूरी कंडीशन क्या है, उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या पता चलता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्या पता चलता है. ठीक है, कॉन्वेक्स फंक्शन कब होता है, कॉनकेव कब होता है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग थ्रू आउट द कोर्स कवर करेंगे. एंड या सो दिस इज व्हाट योर एंटायर कोर्स इज गोइंग टू बी. ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं प्री रिक्विजिट्स की बात करूंगी, क्या कुछ पहले से हमें आना चाहिए जो क्लास 12 का है. हाँ ठीक है, बेसिक चीजें यू शुड अंडरस्टैंड, बट जिस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे, इवन इफ यू आर नॉट वेरी ब्रश्ड अप विद द कॉन्सेप्ट, इट्स फाइन, एवरीथिंग विल बी डन फ्रॉम ग्राउंड जीरो. और बुक में भी सारी चीजें बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही कराई हुई हैं. इफ यू वांट यू कैन रिवाइज your functions chapter, your limits chapter and your differentiation chapters. If you want, it'll be good for you, but everything will be done from ground zero only. So अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है क्लास 12 के कॉन्सेप्ट्स में, so that is also fine. We will do everything from starting from the basics. ठीक है,
ये हमारा पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है, ठीक है? एनी डाउट सो फार इन दिस? एनीथिंग दैट यू गाइस वुड लाइक टू आस्क? All clear? Okay, perfect. So you guys have started, so in college classes have started, they've started teaching, or are they waiting for next week to start or something like that? College में क्या चल रहा है? Not yet? Okay. Yes, teachings are started. अच्छा, teaching classes have started. Okay, lovely. So how do you feel about everything going on? कैसा लग रहा है? I think it's all going on too much high pace, like teachers are continuously teaching us, and it's getting difficult for us. So every single day, so they've started with all the subjects, all 7, or just 3, 4 going on? No, just 3 subjects: micro, stats, and MME. Okay. Okay. I understand, like the syllabus is huge, and anyways in college mein you just have a 1 hour lecture, right? So पहले 5 मिनट इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं, फिर एंड में 5 मिनट बच्चे वैसे ही थोड़े से हरी में रहते हैं. सो आई कैन अंडरस्टैंड द प्लेस वेयर दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, बट ओवर टाइम इट विल बी फाइन. धीरे धीरे यू विल जस्ट गेट हैबिचुअल ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग. So, all right. Okay. So, guys, this will be our syllabus. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इसमें अब हम एक चीज ये कर सकते हैं, ये हमें देखना है कि ठीक है, सो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस बुक में से करेंगे. इसके अलावा मैथ्स में आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है? एक चीज और, ये पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें बार बार जो बुक में भी अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगे, बिकॉज दिस इज अ बुक फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस. तो दे विल कीप रेफरिंग यू टू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स. तो हो सकता है बहुत सारी चीजें जो हैं आपने इकोनॉमिक्स वाली अभी की नहीं हो, बट उसको सिर्फ मैथमेटिकली समझना और बेसिक बेसिक जहां पे भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको बताने की जरूरत होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो वी विल कीप डूइंग दैट साइड बाय साइड. बट इट्स अ गुड आइडिया टू कीप रेफरिंग टू दोज एग्जाम्पल्स, बिकॉज इस पेपर का मेन पर्पस यही है फॉर यू टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स, ताकि आप जाके आगे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई कर सको, ठीक है? सो फॉर प्रैक्टिस जो आपकी हैमेंड बुक है उसके एग्जाम्पल्स देखो और उसकी बैक प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है? सो प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस हैमेंड बुक, फ्रॉम बुक एंड बैक एक्सरसाइजेस. सो हर सेक्शन के बाद ना एक एक्सरसाइज है, सो यू हैव टू डू दैट ऑल्सो, ठीक है? तो ये 2 चीजें हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. तीसरी चीज जो आप रेफर कर सकते हो और जो करनी भी चाहिए वो है आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस. सो बिकॉज ये आपका बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नया फ्रेमवर्क आया है, सो ओनली देर इज वन रेफरेंस पॉइंट दैट यू हैव विच इज द पास्ट ईयर क्वेश्चन दैट योर सीनियर बैच हैड. कि एक ही आपके लिए रेफरेंस बुक है जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपके सिलेबस के हिसाब से है. सो बेसिकली 2023 में जो पेपर हुआ है, जो मार्च में पेपर हुए थे, 2023 वाला पेपर आप रेफर कर सकते हो. एंड उसके अलावा ये कोर्स हमेशा से रहा है, और ये पर्टिकुलर कोर्स, यही पर्टिकुलर बुक फॉलो रहती है. तो एमएमई 1 वाले जो चैप्टर्स हैं, एमएमई 1 वाले जो पीवाईक्यूज हैं जो पुराने बैच के थे, वो भी आप रेफर कर सकते हो, और वो आपको रेफर थोड़े से करने चाहिए. इससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है और किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको टैकल करने आने चाहिए किस लेवल पे, वो भी थोड़ा सा पता चल जाता है. सो प्रीवियस पीवाईक्यूज as well, like before even your particular degree started. So PYQs from previous batch. Okay, so Muskan is saying, ma'am, I heard that this paper many seniors in the last year they were very hard. Yes, exactly. So जो last year का MME का paper था, this introductory MME, that turned out to be very difficult. But typically उतना difficult नहीं था. That was like once in a lifetime type of situations. Like everyone was saying that. So
ठीक है, इट कैन बी अ लिटिल डॉन्टिंग फॉर यू टू सी दैट, बट अगेन हमें हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं, जो बेस्ट चीजें अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हमें बेस्ट करना है. तो यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ इट. जस्ट कीप डूइंग द कॉन्सेप्ट्स, कीप प्रैक्टिसिंग, keep looking at different PYQs. That is the only possibility that we have right now. ठीक है, so जो given resources हैं उसमें अपना बेस्ट करना है. तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि ठीक है पुराना वाला पेपर बहुत हार्ड आया था तो अब क्या होगा. अब जब आप सेकेंड सेमेस्टर के लिए रेफरेंस पूछोगे तो सेकेंड सेमेस्टर वाला पेपर अच्छा आया था. Many people were able to do very well in that. So just putting all your faith in that won't be the right thing to do, right? So this keeps happening, difficult easy, this keeps happening. So don't worry too much about it. Okay, so with these things, ma'am, can we just rely on readings and PYQs for preparing? Yes, the readings, examples from Hammond and the back problems. So जो भी reading है उसके exercises, problems and PYQs, that is particularly all. इसके beyond you don't need to do anything, and soon you will also realize that इसके beyond आप कर भी नहीं पाओगे, because you will have so much to do already. ठीक है ना. तो अगर आप इतना भी cover कर पा रहे हो तो that is more than enough. ठीक है, readings plus PYQs, that's all, that's enough. Okay. Yeah, just one more thing, just be a little regular with this, whether you're trying to do it on your own, or you have some assistance with yourself in terms of outside. जो भी हो, इस कोर्स को लाइटली मत लेना, बिकॉज सडनली फिर एंड में बहुत सारी चीजें पाइल अप हो जाएंगी. चाहे रोज थोड़ा 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 करते रहो, बट जस्ट बी अ लिटिल रेगुलर विद दिस. ठीक है, स्पेशली द MME एंड द स्टैट्स पेपर. माइक्रो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, बट मैथ्स और स्टैट्स में थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम होती है, दे कीप पाइलिंग इट अप. ठीक है, सो डोंट डू दैट. And yeah, these things are more than enough going forward. Okay, is that fine? Yes, ma'am. Okay, apart from that guys, अब फिर मेन मुद्दा ये आ जाता है कि ठीक है अब मार्किंग किस तरीके से होगी. बाय नाउ यू मस्ट हैव हर्ड फ्रॉम एवरीबडी दैट आपका जो है पूरा कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन वाला सिस्टम चलेगा. मतलब internals honge throughout the entire semester. You'll keep having different tests and assignments and quizzes and everything. You'll have marks for attendance also. So aapka jo without before final paper जो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट और आपका कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट, दैट कैरीज 70 मार्क्स. एंड इट्स नॉट लाइक कि ये जो टोटल 70 एंड 90 मार्क्स है 160 में से आपको चीजें लेके आनी है. नहीं, यू हैव टू pass here also and you have to pass here also. So you cannot ignore the importance of this. So you can't just say कि मैं final में ले आऊंगी and I don't really care about what is happening in college. So in your classes, college में many people come and don't attend classes. That will also be the situation soon with so many people going on. But just don't take this lightly, because this is a huge chunk of your marks here and in every subject. Basically हर core subject में आपकी यही situation है. It's LSR. Yeah, so some colleges are anyways very strict regarding attendance and everything, right? So आपके 2 class tests लिखे हुए हैं, 6 marks for attendance, and then problem solving for 10 marks, 2 quizzes, and then again attendance. और कौन किस तरीके से पेपर्स लेंगे, क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा आपके क्लास टीचर पे डिपेंडेंट है. Okay, so Miranda House. Okay, so whatever happens, just don't take this lightly, because ये बहुत बड़ा chunk है. पहले क्या होता था 25-75, right? So 25% and 75%. So even if you don't get anything there and just basic marks, you could manage to do a lot in your finals. But now that has changed. It's like 45-55%. ठीक है, तो ये 90 मार्क्स का आपका फाइनल होगा और 70 मार्क्स का आपका पूरा जो कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है. सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, और अगर जो हमारा फाइनल है उसमें अगर हम लोग इन डेप्थ इन डिटेल देखें कि किस तरीके से चीजें होने वाली हैं, तो दैट इज बेसिकली आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से होगा. इट विल बी हैविंग 3 सेक्शन ABC. Okay, AB3, ABC.
So 40 marks, 30 marks, 20 marks. Every single question will carry 10 marks. उसके अंदर अलग अलग सबसेक्शंस हो सकते हैं. 2 ही सबसेक्शन होंगे as they have mentioned very very specifically कि जो एग्जाम है उसमें जो एक क्वेश्चन होगा जो 10 मार्क्स का है उसमें सबसेक्शंस हो सकते हैं. देयर मार्किंग कुड बी अ लिटिल डिफरेंट, 2 8 5 5 4 6 एनीथिंग दैट कैन हैपन. ठीक है. तो यहाँ पे you will have a little choice. 4 questions you have to attempt out of 6. In this particular section, you will have to attempt 3 out of 4. And here you'll have to attempt 2 out of 3. ठीक है. They have not mentioned anything, any weightage. Unit wise उन्होंने weightage नहीं दी है. But जैसे कि अगर आप देखोगे भी तो ये वाली यूनिट anyways बहुत बेसिक है और ये एक यूनिट है. Although it's a very important unit, इससे बहुत क्वेश्चंस आते भी हैं. सो मेन जो आपका फोकस होगा वो यूनिट 2 जो कि मेजर चंक ऑफ योर कोर्स होगा. एंड देन दिस ऑल्सो 1 चैप्टर इज देयर बट स्टिल लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. सो based on that I would say there is no point in giving less importance to any of it. ठीक है. सारे यूनिट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं. ठीक है. So yeah, but they have not mentioned anything. No weightage has been mentioned specifically unit wise. ठीक है. एंड उसके अलावा ये जो सेक्शंस हैं इसमें ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन एक यूनिट से होगा. इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो सब पार्ट्स हैं दे कैन गेट मिक्स्ड अप विद डिफरेंट यूनिट्स. सो एज सच बहुत क्लियर डिमार्केशन उन्होंने नहीं किया है. ठीक है. सो वी हैव टू बी रेडी विद एवरीथिंग एंड एनीथिंग व्हिच माइट कम आवर वे. ठीक है. तो दैट इज योर एग्जाम पैटर्न. 90 मार्क्स, 70 मार्क्स फॉर योर कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन. So this is the entire thing that is going to happen. ठीक है. तो इसके अलावा हमने सिलेबस समझ लिया है और प्री रिक्विजिट एज सच there's nothing as such that you have to revise. In case you are interested you can revise the functions and relation वाला chapter थोड़ा सा, mainly function वाले aspects. and उसके अलावा जो जहाँ पे भी limits की बात हुई है, differentiation and application of derivatives also you can try to just skim through it a bit. That is pretty much it that you can do. बट वो सब भी एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट रीडिंग अप फ्रॉम दीज 9 चैप्टर्स बिट बाय बिट. एंड इसमें जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो डेफिनेटली आपको कवर करने हैं. और प्रैक्टिस के नाम पे आपकी बुक, उसके एग्जांपल्स, उसके बैक एक्सरसाइजेस एंड जो भी आपके PYQs हैं वो, दैट इज ऑल एम्यूनेशन दैट यू नीड टू विन दिस वॉर. ठीक है. और एग्जाम पैटर्न हमें पता ही है. Just try to be a little regular with everything. Okay. Apart from that, I would just like to take a moment to tell you what all we will be covering or providing in this particular course that we are taking live. So आपकी classes जो है Monday और Wednesday को होगी, every single Monday and Wednesday. So like today is a Monday. Today anyways we'll just be keeping a short class discussing all the important housekeeping stuff going on. So हमारी class होगी 6 to 8:30. We will have a break in between, so don't worry if it's too long. बीच में हम लोग 10-15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. और जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी और उनके रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो नेक्स्ट डे आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं ऑन आवर वेबसाइट. एंड ऑल द चैप्टर नोट्स विल बी गिवन टू यू. और आफ्टर एवरी सिंगल चैप्टर इज डन वी discuss a few past year questions which have come from that particular chapter, so that will also be there. And we also have a WhatsApp group for all the people who enroll. They will be added to that. और वहाँ पे आप बिल्कुल अपने doubts, जो भी queries हैं, जो भी updates हैं, वो सब हम लोग share करते रहेंगे. And we will also have doubt classes once our course end. And in the middle also we'll keep having doubt classes in case a lot of doubts pile up. And apart from that, you can feel free to contact me for any other queries that you might have. So you do get that access once you enroll also. And all the course content, all the material, everything needs to be all of that will be available on our website. And this is the website www.poonamkumari.com/learn. So whatever courses that we are offering and whatever everything detailing is available there, so you can check that out as well. Okay. So yeah, this is pretty much all the details that I would have wanted to cover with you, and I have. And iske alawa, in case you have any other queries regarding the course or in general about anything, feel free to ask. But yeah, this is pretty much it that I wanted to cover for today's class.
We also have another class tomorrow, the first class for statistics. So because I'm taking a statistics course as well. And apart from that, we also have a playlist for introductory MME, जहाँ पे हमने बहुत सारे concepts, basics सारे cover किए हैं. So you can refer that also in case you want to study खुद से self study अगर आपको करनी है तो आप वो lectures भी cover कर सकते हो. Okay, ma'am, is it possible with regular? Yes, definitely it is possible. Regular efforts अगर आप करो तो what is not possible? That is not the situation. Definitely it's possible to score a 9+ SGP with regular efforts. Yes, but sometimes बस ये होता है कि हाँ, sometimes the university, if they they do a very, very difficult paper, yeah, something sudden might happen. Only in those scenarios things might be different. But yes, if you are a regular, you are sincere, this is possible, and a lot of students get that. So no doubts about that. Yes, it's a big yes. It is possible. Yes. And yeah, just just be a little regular. अभी क्या है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आएंगी कॉलेज में और societies and everything that will keep going on. That will keep going on all the time. Definitely you should be a part of those things, but you should not sideline this also, because you should just understand what is your primary thing and what is your secondary thing. And as long as everything is going well with your primary thing, whatever happens in the secondary thing doesn't really matter, right? So just be a little regular. You don't have to be too rigorous. Thoda thoda karte raho roz. That would be enough. Okay. All right. So tomorrow we will start off, not tomorrow, actually Wednesday, we will start with the first unit, which is the preliminaries. And उसमें फिर हम लोग real numbers, proof, set, logic, ये सब के बारे में बात करेंगे. Yes, everything in life is a trade-off. Yes, definitely. All right. So guys, in case you have no doubts, I think let's wrap it up, and I'll see you guys on Wednesday. And in case you would like to contact me for anything, feel free to contact. I think you guys might have my number also. It's available on the website as well, and I can just post it here also. All right. Okay, guys, thank you so much. It's lovely to see you. Wishing you all the very best for your first year. And yeah, best wishes. Thank you so much. Take care. Thank you, Muskan. Thank you, Vidhi.